Today we're going to look at how God answers our spiritual needs if we ask Him in prayer. How He can deliver you from every evil influence and every type of evil in your life. इस अध्ययन में हम यह देखने जा रहे हैं कि यदि हम प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, वह आपको आपके जीवन में हर बुरे प्रभाव और हर प्रकार की बुराई से कैसे बचा सकते हैं. In the prayer that Jesus taught His disciples to pray in Matthew chapter 6, verses 9 to 13, we see first of all that Jesus taught His disciples to pray putting God first, God's name, God's kingdom, God's will. मत्ती 6:9 से 13 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जो प्रार्थना करना सिखाया, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को परमेश्वर को प्रथम रखकर प्रार्थना करना सिखाया. परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की इच्छा. And then after that He taught them to pray concerning their own needs. First of all, their physical material needs. And there's nothing unspiritual about praying that, because if you're not physically alive, how can we do anything else? उसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी आवश्यकताओं के बारे में प्रार्थना करना सिखाया. सबसे प्रथम अपनी शारीरिक और भौतिक जरूरतों के बारे में. ऐसी प्रार्थना करने में कुछ भी अआध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि यदि हम शारीरिक रूप से जीवित नहीं रहेंगे तो हम कुछ और कैसे कर सकते हैं. So to be physically alive is important before we can do God's will. इसलिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से प्रथम शारीरिक रूप से जीवित रहना महत्वपूर्ण है. So He taught us to pray, give us this day our daily bread. इसलिए उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, आज हमें हमारी रोज की रोटी दो. You know, the necessities of life. जो जीवन की आवश्यकताएं हैं. And then we considered that in our last study. We want to go on to the second request for ourselves, and that is forgive us our sins. And then the third request for ourselves, deliver us from evil. हमने अपने पिछले अध्ययन में इस पर विचार किया था. अब हम अपने लिए दूसरी प्रार्थना पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और वह है हमारे पापों को क्षमा करे, और तीसरी प्रार्थना हमें बुराई से बचाए. See, we basically have two problems as human beings. One relates to our past and the other relates to the future. देखिए, मनुष्य के रूप में हमारी मूलत दो समस्याएं हैं. एक हमारे अतीत से संबंधित है और दूसरी भविष्य से संबंधित है. We can put it like this. In the past, we've done so many wrong things, and what we need is forgiveness. हम इसे ऐसे कह सकते हैं, अतीत में हमने बहुत सारे गलत काम किए हैं और हमें क्षमा की आवश्यकता है. In the future, because of our corrupt nature, we may still do a lot of evil things. भविष्य में अपने भ्रष्ट स्वभाव के कारण हम अभी भी बहुत सारे बुरे काम कर सकते हैं. And because of that danger, we need help from God to be able to overcome this evil in our nature, so that we don't do the evil in future. उस खतरे के कारण हमें अपने स्वभाव की इस बुराई पर जय पाने के लिए परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य में बुराई न करें. So we can say the first request concerns the past and the second request concerns the future, and there's the only two sides in our life, the past and the future. तो हम कह सकते हैं कि पहला अनुरोध अतीत से संबंधित है और दूसरा अनुरोध भविष्य से संबंधित है. हमारे जीवन में केवल वे ही दो पहलू है, अतीत और भविष्य. So the first request here is concerning the past. Lord, I've committed so many sins. Please forgive me all my sins. तो यहाँ पहला अनुरोध अतीत से संबंधित है. प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, कृपा मेरे सभी पापों को क्षमा करे. You don't have to make a list of all your sins. I think it's impossible for anyone to make a list of all the millions of sins he's committed in his life. आपको अपने सभी पापों की सूची बनाने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी के लिए भी अपने जीवन में किए गए लाखों पापों की सूची बनाना असंभव है. We acknowledge it. We acknowledge we're sinners. We have done so many things to displease God, and we're asking Him to forgive us, as we have forgiven our debtors. You see, that's the only condition. हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं और हमने परमेश्वर को नाराज करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और हम उनसे हमें क्षमा करने के लिए कह रहे हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ कर दिया है. देखिए, यही एकमात्र शर्त है. When we come to the Lord and ask Him to forgive us, it's important that we ourselves have forgiven other people who have done wrong to us. जब हम प्रभु के पास आते हैं और उनसे क्षमा करने के लिए कहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हमने स्वयं उन अन्य लोगों को क्षमा कर दिया है जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है. Isn't that righteous of God to
require that from us? क्या हमसे यह अपेक्षा करना परमेश्वर के लिए सही नहीं है? Jesus told a story once about a king who forgave a man a debt, a huge debt, let's say 1 crore worth of rupees. प्रभु यीशु ने एक बार एक राजा के बारे में एक कहानी सुनाई थी जिसने अपने नौकर का बहुत बड़ा कर्ज माफ कर दिया था। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। 100 lakhs worth of rupees. A man had a debt to a king and the king forgave. 100 लाख रुपए का इस आदमी पर राजा का इतना बड़ा कर्ज था और राजा ने उसे क्षमा कर दिया। Now to be forgiven 1 crore, 100 lakh rupees is a fantastic experience. 1 करोड़ या 100 लाख रुपए का कर्ज माफ होना कितना शानदार अनुभव है। A man will just jump for delight and shout for joy that he's been forgiven so much. एक आदमी खुशी से उछल पड़ेगा और खुशी से चिल्लाएगा कि उसे इतना ज्यादा कर्ज माफ कर दिया गया है। And then Jesus said that man went out into the street jumping with joy and delight and he met a person who owed him 10 rupees. तब प्रभु यीशु ने कहा कि यह मनुष्य आनंद और प्रसन्नता से उछलता हुआ सड़क पर चला गया और उसे एक और व्यक्ति, एक साथी नौकर मिला जिस पर उसका 10 रुपए बकाया था। And he caught him by the throat and said, "You better pay up that 10 rupees you borrowed from me. Otherwise I'll lock you up in jail." And he took him to court for the 10 rupees and thrust him into jail. उसने इस दूसरे व्यक्ति का गला पकड़ लिया और कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझसे उधार लिए गए 10 रुपए चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हें कारागृह में बंद कर दूंगा। फिर वह उसे 10 रुपए के कर्ज के लिए अदालत में ले गया और कारागृह में डाल दिया। And do you know what the king said? What the king did? When he heard about it, he called that first servant back. He said, "Hey, come here." क्या आप जानते हैं कि जब राजा ने इसके बारे में सुना तो उसने क्या किया? उसने प्रथम नौकर को वापस बुलाया और कहा, अरे इधर आओ। Didn't I forgive you 100 lakhs of rupees? 10 million rupees? And you couldn't forgive another person 10 rupees? Why was that? क्यों? मैंने तुम्हारा 100 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं किया और तुम उस दूसरे का 10 रुपए भी माफ नहीं कर सके? ऐसा क्यों था? Well, now you have to learn a lesson too. If you don't forgive other people, I won't forgive you. You get back into prison now, get into prison along with that other fellow, and you pay up your 1 crore or 10 million, and he'll pay you his 10. खैर, अब तुम्हें भी सबक सीखना होगा। यदि आप अन्य लोगों को माफ नहीं करेंगे तो मैं भी आपको माफ नहीं करूंगा। आप दूसरे साथी के साथ कारागृह में प्रवेश करें और आप अपना 1 करोड़ या 10 लाख का भुगतान करें और वह आपको आपके 10 रुपए का भुगतान करेगा। And Jesus said, "My heavenly Father will do exactly like that to you if you don't forgive others." प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही करेगा। I want to tell you, dear friends, one of the greatest sins, one of the greatest sins found among Christians throughout the world today is the sin of an unforgiving spirit, an unforgiving attitude. प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया भर में मसीहियों के बीच पाए जाने वाले सबसे बड़े पापों में से एक क्षमा न करने वाली आत्मा का पाप, एक क्षमा न करने वाला रवैया है। And if you have that towards another person, that's the one place in the Bible where Jesus said your own sin will not be forgiven. And even if it was forgiven, God will remove that forgiveness and unforgive you. यदि आपके मन में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति ऐसा भाव है तो यही वह स्थान है जहां प्रभु यीशु ने कहा, आपके अपने पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे, और यदि पहली बार में क्षमा कर भी दिया गया हो तो परमेश्वर उस क्षमा को हटा देगा और आपको क्षमा नहीं करेगा। Have you ever heard of forgiveness? Yes, you have. क्या आपने कभी क्षमा के बारे में सुना है? हाँ, आपने सुना है। Have you heard of unforgiveness, where God unforgives what he had already forgiven? That's the meaning of that story in Matthew chapter 18. क्या आपने क्षमा न करने के बारे में सुना है, जहाँ परमेश्वर उन पापों को क्षमा नहीं करेंगे जिन्हें उन्होंने पहले ही क्षमा कर दिया था? मत्ती 18 में उस कहानी का यही अर्थ है। The king forgave the servant and later on withdrew that forgiveness. राजा ने नौकर को क्षमा कर दिया और बाद में उस क्षमा को वापस ले लिया। And that Jesus said, "My heavenly Father will do the same to you." See, not to forgive another person is such a serious crime in God's eyes that out of all these 6 requests in the prayer, you know the 6 requests: hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, give us this day our daily bread, forgive us our sins,
deliver us from evil. These are the 6 requests in this prayer. प्रभु यीशु ने कहा, मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा। देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति को क्षमा न करना परमेश्वर की नजर में इतना गंभीर अपराध है कि प्रार्थना में इन सभी 6 अनुरोधों में से तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, हमें इस दिन हमारे रोज की रोटी दे, हमारे पापों को क्षमा करे, हमें बुराई से बचाए, यह 6 अनुरोध है। Out of the 6 requests, Jesus picked out one and emphasized that at the end of the prayer. You know which one that was? This one of forgiving others. प्रभु यीशु ने 6 अनुरोध में से एक को चुना और उस अनुरोध के अंत में इस पर जोर दिया। तुम्हें पता है वह कौन सा था? यह दूसरों को क्षमा न करना। He repeated like this in verse 14, Matthew 6:14. If you forgive men their transgressions, your heavenly Father will forgive you. उन्होंने इसे मत्ती 6:14 में इस तरह दोहराया, यदि तुमने मनुष्य के अपराध क्षमा किए हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। But if you don't forgive men, then your Father will not forgive your transgressions. परंतु यदि तुम मनुष्य को क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। Think of that for a moment. If there is somebody on earth whom you have not forgiven, your heavenly Father will not forgive you. Impossible. एक पल के लिए इसके बारे में सोचो, यदि पृथ्वी पर कोई है जिसे तुमने क्षमा नहीं किया है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यह असंभव है। You will not go to heaven. That's impossible. You cannot go to heaven if you have not forgiven everybody on this earth. Please remember that. यदि आपने इस धरती पर सभी को क्षमा नहीं किया है तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। कृपया इसे याद रखें। There is no entry into God's kingdom without forgiveness of sins through the death of Jesus Christ. But that forgiveness will not be given to you if there is one human being you have not forgiven. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से पापों की क्षमा के बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है, लेकिन वह क्षमा आपको नहीं मिलेगी अगर कोई एक इंसान है जिसे आपने क्षमा नहीं किया है। So, let's ask the Lord to forgive us. And as we do it, let's forgive every single person who's ever wronged us in our whole life. Release them. तो आइए हम प्रभु से हमें क्षमा करने के लिए कहें और हम हर उस व्यक्ति को क्षमा करें जिसने हमारे जीवन में कभी भी हमारे साथ अन्याय किया है और उन्हें रिहा कर दे। Say, Lord, just never mind that you can't forget the evil. God doesn't ask you to forget what people have done. He only asks you to forgive them. And that's with a simple word. Say to the Lord, Lord, I forgive that person and that person and that person. I'm not going to hold it anymore against them, whatever they've done. यदि आप बुराई को नहीं भूल सकते तो कोई बात नहीं। परमेश्वर आपसे यह नहीं कहते कि लोगों ने जो किया है उसे भूल जाओ। वह आपसे केवल उन्हें क्षमा करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर से कहने के लिए एक सरल शब्द, परमेश्वर मैं इस व्यक्ति को और उस व्यक्ति को और उस दूसरे व्यक्ति को क्षमा करता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया है मैं अब उनके खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं रखूंगा। Then we can go to the next prayer. Lord, don't lead us into temptation, but deliver us from evil. Lord, help me to run away from temptation. Give me strength. Don't try to act like a brave person. फिर हम अगली प्रार्थना पर जा सकते हैं। परमेश्वर हमें प्रलोभन में न ले जाए बल्कि बुराई से बचाए। परमेश्वर मुझे प्रलोभन से दूर भागने में मदद करे, मुझे शक्ति दे। एक बहादुर व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की कोशिश मत करें। The Bible says, flee from idolatry, flee from youthful lusts. Don't put yourself in the place where you can be tempted unnecessarily. बाइबल कहती है कि मूर्ति पूजा से भागो, युवा वासनाओं से भागो। अपने आप को उस स्थान पर न रखे जहां आप अनावश्यक रूप से प्रलोभित हो सकते हैं। No, run away from it. Lord, please help me. Don't lead me into situations where I face things which are too much for me to handle. नहीं, इससे दूर भागो। हे प्रभु, कृपया मेरी सहायता करे। मुझे ऐसी परिस्थितियों में मत ले जाओ जहां मुझे ऐसी चीजों का सामना करना पड़े जिन्हें संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो। But deliver me from all evil. From every type of evil, Lord, deliver me, especially the evil of sin, the corruption that is in my own nature. Please deliver me from it. हे प्रभु, मुझे हर प्रकार की बुराई से छुटकारा दिलाओ, विशेष कर पाप की बुराई से जो भ्रष्टाचार मेरे स्वभाव में है। हे प्रभु, कृपा मुझे उससे छुटकारा दिलाओ। And Lord, all these things that I ask are for your glory and for the honor of your name. For yours is the kingdom, the power and the glory. He concludes with that and says, it shall be so. और ये सब वस्तुएं जो मैं मांगता हूँ वे आपकी महिमा के लिए और आपके नाम के सम्मान के लिए है, क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा आपकी है। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, आमीन, ऐसा ही होगा। But let's look at that last request for a moment. Deliver us from evil. Again, not just me. आइए एक पल के लिए उस अंतिम अनुरोध को देखें।
हमें बुराई से बचाए। फिर से यह सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, It's me plus my fellow believers. Deliver us from evil for the sake of your kingdom, for the sake of your glory. जब मैं और मेरे साथी विश्वासी हैं, अपने राज्य के खातिर, अपनी महिमा की खातिर हमें बुराई से छुड़ाओ। Lord, your name is so dishonored when Christians who take your name do evil. प्रभु, आपके नाम का बहुत अपमान होता है जब आपका नाम लेने वाले मसीही बुराई करते हैं। So deliver us, Lord, from evil, from everything that dishonors your name. Deliver us. तो हे प्रभु, हमें बुराई से बचा, हर उस चीज से जो तेरे नाम का अपमान करती है, हमें बचा। See, here is an acknowledgement that I cannot deliver myself. Just like I cannot earn forgiveness, God has to forgive me. देखिए, यहाँ एक स्वीकृति है कि मैं खुद को बचा नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे मैं क्षमा नहीं कमा सकता, परमेश्वर को मुझे क्षमा करना होगा। I cannot deliver myself by self-control or by determination or any such thing. मैं आत्मनियंत्रण या दृढ़ संकल्प या ऐसी किसी चीज से अपना उद्धार नहीं कर सकता। I'm asking God, who is the only one who's got power to deliver me. Lord, deliver us from evil. मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो एकमात्र है जिनके पास शक्ति है, वह मुझे बचाए। हे प्रभु, हमें बुराई से बचाए। We acknowledge that you are the only one who's got the strength to deliver us. हम स्वीकार करते हैं कि आप ही एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास हमें बचाने की ताकत है। The devil is too strong. The lusts in our flesh are so strong. The lust of my eyes is so strong. My tongue is uncontrollable, Lord. This anger is too powerful. But deliver us from anger. शैतान बहुत शक्तिशाली है। हमारे शरीर में वासनाएं इतनी प्रबल है, मेरी आंखों की वासना इतनी प्रबल है और मेरी जीभ इतनी अनियंत्रित है। यह क्रोध बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमें क्रोध से बचाएं। Deliver us from lusting with our eyes. Deliver us from bitterness and wrong attitudes and from telling lies in our place of work. हमें आंखों की लालसा से बचाए और हमें कड़वाहट और गलत व्यवहार से और हमारे कार्यस्थल में झूठ बोलने से बचाए। Lord, the pressure is so great sometimes, but deliver us. Your power is able to do it. हे प्रभु, दबाव कभी कभी बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें बचाए, आपकी शक्ति यह करने में सक्षम है। And then the prayer concludes as it began, with God. फिर प्रभु यीशु ने प्रार्थना को वैसे ही समाप्त किया जैसे वो शुरू हुई थी, परमेश्वर के साथ। The Bible says God is the first and He's the last. In this prayer too, Jesus taught us to pray. When you finish, acknowledge that the kingdom is God's. The power is God's. Thine is the kingdom, the power and the glory. बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रथम है और वह अंतिम है। इस प्रार्थना में प्रभु यीशु ने हमें यह स्वीकार करते हुए निष्कर्ष निकालना सिखाया कि राज्य परमेश्वर का है, शक्ति परमेश्वर की है और महिमा परमेश्वर की है। It's the prayer of a humble man who acknowledges that God is everything and He is nothing. यह एक विनम्र व्यक्ति की प्रार्थना है जो स्वीकार करता है कि परमेश्वर ही सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है। Oh God, yours is the kingdom, yours is all the power that can make us live as we should be living, and yours is all the glory. हे परमेश्वर, राज्य आपका है, सारी शक्ति आपकी है और महिमा आपकी है, जो हमें वैसे ही जीवन जिलाती है जैसे हमें जीना चाहिए। In other words, when you have done these things and answered our prayer, we won't take any credit for it to ourselves. दूसरे शब्दों में, जब आपने ये काम किए हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, तो हम इसका कोई श्रेय अपने ऊपर नहीं लेंगे। We won't pretend that we did it. It was your work and we give you all the glory. हम यह दिखावा नहीं करेंगे कि हमने यह किया है, यह आपका काम था और हम आपको सारी महिमा देते हैं। It's yours. And then that last word, Amen. यह आपका है। फिर प्रार्थना में वह आखिरी शब्द आमीन। That's a Hebrew word which means it shall be so. वह एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा ही होगा। It's an expression of faith. यह विश्वास की अभिव्यक्ति है। Just like the prayer began with a help to faith by praying, Our Father who loves us, who art in heaven, Almighty Sovereign King, Ruler of the universe. It concludes also with an expression of faith. जैसे प्रार्थना विश्वास के साथ शुरू हुई, इस प्रार्थना के साथ हमारे पिता जो हमसे प्रेम करते हैं, जो स्वर्ग में है, सर्वशक्तिमान, सप्रभु राजा, जगत के शासक है,
इसी तरह विश्वास की अभिव्यक्ति के साथ समाप्त होती है। Amen means, Lord, everything that I have prayed, I believe it will be so. आमीन का अर्थ है, हे प्रभु, मैंने जो भी प्रार्थना की है मुझे विश्वास है कि वैसा ही होगा। It is going to take place exactly like I have asked ये for. वैसा ही होगा जैसे मैंने मांगा था। I believe that your name is going to be honored and your kingdom will come. Your will be done on earth as it is in heaven. And you're going to provide us our need. You're going to forgive us our debts. You're going to deliver us from all evil. And your name will be glorified. और मुझे विश्वास है कि आपके नाम का सम्मान किया जाएगा और आपका राज्य आएगा और आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी होगी जैसे स्वर्ग में है, और आप हमें हमारी आवश्यकताएं प्रदान करेंगे। आप हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे, आप हमें सारी बुराई से बचाएंगे और आपके नाम की महिमा होगी। So, when we conclude any prayer with the word Amen, it means more than just a little signal to everybody that the prayer is over. It's a very meaningful statement. इसलिए जब हम किसी प्रार्थना को आमीन शब्द के साथ समाप्त करते हैं तो इसका अर्थ हर किसी के लिए एक छोटे से संकेत से कई अधिक होता है कि प्रार्थना समाप्त हो गई है। यह बहुत ही सार्थक कथन है। We're saying thereby, I believe it shall be so. Exactly like this brother prayed, I'm saying Amen. It shall be so. It's an expression of faith. हम ऐसा कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे इस भाई ने प्रार्थना की थी। मैं आमीन कह रहा हूँ, ऐसा ही होगा। यह विश्वास की अभिव्यक्ति है। Now we don't have to repeat this prayer every time we pray. अब हमें हर बार प्रार्थना करते समय यह प्रार्थना दोहराने की जरूरत नहीं है। But Jesus said, pray in this way, verse 9, which means all our prayers should begin with being centered in God, should be an expression of faith, and conclude with giving God the glory and an expression of faith that God will answer our prayer. क्योंकि प्रभु यीशु ने मत्ती 6:9 में कहा, इस तरह से प्रार्थना करो, जिसका अर्थ है कि हमारी सभी प्रार्थनाएं परमेश्वर पर केंद्रित होनी चाहिए। यह विश्वास की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और परमेश्वर को महिमा और विश्वास की अभिव्यक्ति देकर समाप्त होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें प्रतिक्रिया देंगे। May all our prayers be like this in future. भविष्य में हमारी सभी प्रार्थनाएं ऐसी ही हो।